How are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is our environment. Our environment. हमारा environment. Students, in this topic you will be familiar about greenhouse effect and global warming. Greenhouse effect and global warming. The surrounding in which we live is our environment. What is environment? The surrounding in which we live is our environment. वो surrounding जिसमें कि हम रहते हैं वही surrounding हमारा क्या कहलाता है? Environment. Human beings have made several changes in the environment. और human beings ने environment में several changes किए हैं. Why? To fulfill their needs. अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसने एनवायरनमेंट में ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट में सेवरल चेंजेस किए हैं. कुछ चेंजेस तो ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया है, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन. व्हाट इज पोल्यूशन? The harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution. वो harmful changes, वो harmful activities of human beings that brought in the environment, जो कि environment में लाई गई है, that are known as pollution, जिनको कि हम क्या कहते हैं? pollution. Once again, what is pollution? The harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution. There are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. 4 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल. एयर पोल्यूशन किन की वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स. इट मीन्स smoke that is released by industries and vehicles that pollute our air. It means what is air pollution? Contamination of air by adding pollutants. By adding air pollutants is known as air pollution. Then next, water pollution. Next, water pollution. What is water pollution? Contamination of water by adding water pollutants is known as water pollution. Water pollution caused by releasing of household and industrial waste into water bodies. और ये किसकी वजह से होता है? By releasing household garbage and throwing them into water bodies, and industrial waste adding into water bodies. It happens. Then next, land pollution. Next is land pollution. What is land pollution? Contamination of land by adding land pollutants is known as land pollution. Once again, what is land pollution? Contamination of land by adding land pollutants known as land pollution. Land pollution is caused by dumping of solid waste like polythene bags, household garbage, glass bottles in the soil, etc. लैंड पोल्यूशन कब होता है? जब हम हाउस होल्ड गार्बेज क्या करते हैं? लैंड पे थ्रो करते हैं. पॉलीथीन बैग्स वी थ्रो ऑन द लैंड, एंड व्हेन ग्लास बॉटल्स वी थ्रो ऑन द लैंड, एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज दैट वी थ्रो ऑन द लैंड. इट हैपन्स. ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज के फेंकने से, हाउस होल्ड गार्बेज के लैंड पे फेंकने की वजह से इस तरीके का पोल्यूशन होता है. देन नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन. एक्सेसिव नॉइज, excessive sound create noise pollution.
जो कि एक्सेसिव साउंड होती है वो क्या करती है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है। इट इज कॉल्ड बाय लाउड नॉइज ऑफ मशीन्स एंड व्हीकल्स। ये कब होती है? इट इज कॉल्ड बाय लाउड साउंड्स लाइक हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, sound of loudspeakers, sound of DJ, and sound of machines, etc. These create noise pollution that is very harmful for our ears, जो कि हमारे ears के लिए बहुत harmful होती हैं। Then greenhouse effect. Greenhouse effect. A greenhouse is a house made up of glass that is used for growing plants in winter. Greenhouse क्या है? It is a house made up of glass, जो कि एक ग्लास का घर होता है, ग्लास से बनाए जाने वाला घर होता है। It is used for growing plants in winter, जो कि विंटर में प्लांट्स ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। The glass walls of a greenhouse allow sunlight to enter, और इस ग्रीन हाउस का जो ग्लास है या ग्लास की जो वॉल है वो सनलाइट को अंदर एंटर करने देती हैं, उसको सनलाइट को की एंट्री को अलाउ करती हैं, वो उसको इजीली एंटर करने देती हैं। बट डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। लेकिन जब उसमें एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उस टेम्परेचर और हीट को वापस एस्केप नहीं होने देती है, उसको अलाउ नहीं करती है। दिस वे ग्रीन हाउस ट्रैप द हीट एंड मेक्स द इनसाइड एनवायरमेंट वार्म। और इस तरीके से ग्रीन हाउस क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है और अंदर के एनवायरमेंट को कैसा कर देता है, वार्म, गर्म कर देता है। इट मेंटेन्स टेम्परेचर इनसाइड द हाउस। इस तरीके से ये हाउस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है इन द विंटर सीजन में, एंड प्रिवेंट स्पॉइलिंग वेजिटेबल्स और प्लांट्स और वेजिटेबल्स को स्पॉइलिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनको बचा लेता है। Similarly, when the sunlight enters the atmosphere, वैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, some of heat is trapped inside, उनमें से कुछ हीट क्या एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड कर ली जाती है। The atmosphere consists of gases like carbon dioxide, और जो ये एटमॉस्फेयर है वो किस, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर किससे बना होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एयर के ब्लैंकेट को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। It consists of carbon dioxide, water vapor, ozone and methane that have the property of trapping heat. ये कौन कौन सी गैसेस से बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन एटसेट्रा, जिनकी की एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रैपिंग ऑफ हीट को ट्रैप करने की उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। सच गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और इन गैसेज को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। These gases do not allow heat to escape into space, और ये गैसेज लाइक ग्रीन हाउस की तरह जो भी हीट होती है उसको स्पेस में एस्केप नहीं होने देती है। जो भी उन्होंने हीट ट्रैप की थी उसको वापस स्पेस में एस्केप नहीं होने देती है, देयर बाय वार्मिंग द एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्या रहता है, गर्म रहता है। नियर बाय द अर्थ सरफेस क्या रहता है, गर्म
एटमॉस्फेयर रहता है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लाइक ग्रीन हाउस जिस तरीके से हीट को ट्रैप कर लेता है और उसको एस्केप नहीं होने देता है, वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है और उसको एटमॉस्फेयर स्पेस में वापस एस्केप नहीं होने देता है, और एक अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Without the greenhouse effect, the earth would be very cold place for the existence of life. यदि ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट के नहीं हो तो हमारी अर्थ कैसी होगी, बहुत कोल्ड होगी। इट मीन्स लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में लाइफ क्या वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लाइक other planets do not have atmosphere, so life is not over there, but our earth has atmosphere around it, so life is found over there। इसलिए यहाँ पर क्या है, लाइफ मिलती है, लाइफ है। living things are living on earth, why? Because it has water, air and land। It means it has atmosphere, so life is found on the earth, because it maintains atmosphere, maintains temperature of the earth, so it do not get too cold and too hot। इस वजह से ये ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो पाती है और ना बहुत ज्यादा ठंडी हो पाती है, लाइक अदर प्लैनेट्स की तरह। Without the greenhouse effect, the earth would be very cold place for the existence of life. Human activities like burning of fossil fuels, deforestation and use of chlorofluorocarbons in air conditioners and refrigerators are increasing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, leading to global warming। एक ये सब जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, खाना कुक करने के लिए क्या करते हैं, और व्हीकल्स को रन करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स वगैरह काम में लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ज्यादा अमाउंट में डे बाय डे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। इस डेफोरेस्टेशन की वजह से इन गैसेस क्या एटमॉस्फेयर में इनका मेंटेनेंस क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें, जो कि कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स हम यूज में लेते हैं, उनसे जो ये निकल रही है, उसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने की वजह से इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर जो डे बाय डे जो ग्रीन हाउसेस गैसेस की इंक्रीज होने से, एटमॉस्फेयर में होने से डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इट मीन्स टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर लाइफ दैट इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। जो कि अर्थ पे लाइफ है उसके लिए अच्छी नहीं है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मोर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट।
जितनी ज्यादा गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में होंगी वो बैलेंस नहीं होंगी तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में हीट ट्रैप करती हैं, ट्रैप करेंगी. दिस हैड लेड टू स्टडी राइज इन द अर्थ टेम्परेचर, जो कि अर्थ टेम्परेचर को क्या करती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं. जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज की जाएंगी ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, उतनी ज्यादा अमाउंट में वो हीट ट्रैप करेंगी और उतना ही ज्यादा अमाउंट में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. एंड दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. और इस अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.